Good morning. Myself Chirag Sukani from Wapil BBA College Vapi, and I'm going to teach you advanced financial management subject. We will continue our chapter number 4, that is investment decision under risk and uncertainty, and we already completed, that is risk adjusted discount rate method and the certainty equivalent approach method. So today in this session we will discuss the next method, that is sensitivity analysis. Fourth method, सेंसिटिविटी एनालिसिस ना उसमें से थियोरी भी आती है और ज़्यादातर सम्स. ओके, चल फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेंसिटिव एनालिसिस. नाउ सेंसिटिविटी एनालिसिस, इट इज अ टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ change in each of the different underlying variables such as cash inflow, cash outflow, project life, cost of the capital and so on the project's NPV. इट मीन्स ये दिस मेथड ये क्या एनालाइज करता है, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन ईच ऑफ द वेरिएबल. दैट मीन्स अगर कैश इनफ्लो में चेंज हुआ तो व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट एनपीवी. कैश आउटफ्लो में चेंज हुआ, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन एनपीवी. प्रोजेक्ट लाइफ में चेंज हुआ, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन एनपीवी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज हुआ, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन एनपीवी. ओके, so this analysis, it is a technique, that is sensitivity analysis. It is a technique of analyzing impact of change in this variable on projects NPV. Clear? So here decision maker, while performing the sensitivity analysis, compute the project of NPV for each forecast under three assumptions. Now अंडर दिस मेथड जो भी डिसीजन मेकर है, जब भी वो सेंसिटिविटी एनालिसिस को स्टडी करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कैलकुलेट करेगा प्रोजेक्ट्स का एनपीवी, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, अंडर थ्री मेजर एजम्पशंस. यानी अगर पेसिमिस्टिक बिहेवियर हुआ सो व्हाट इज एनपीवी, एक्सपेक्टेड हुआ मोस्ट लाइकली देन व्हाट इज एनपीवी, and the optimistic hua to what is NPV. So decision maker, while performing the sensitivity analysis, compute the project NPV for under the forecast of major three assumptions. In case of pessimistic, what will be the NPV? In case of expected, what will be the NPV? And in case of optimistic, what will be the NPV? Clear? Now sensitivity analysis answer the question of this. Okay, so first question, what will happen to NPV, that is net present value, if cash inflows are less than the expected. यानी मैनेजर ने सोचा था कि इतना कैश फ्लो होना चाहिए बट कैश फ्लो कम आया, तो व्हाट विल हैपन टू एनपीवी. एनपीवी कम होगा, हाई होगा, तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस से पता चलेगा. दैट इज व्हाट विल हैपन टू एनपीवी इफ कैश इनफ्लोज आर लेस देन एक्सपेक्टेड. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू एनपीवी इफ द कैश आउटफ्लो आर मोर देन द एक्सपेक्टेड. ओके, मैनेजर ने एक्सपेक्ट किया था कि इन्वेस्टमेंट इतना होगा बट इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, सो व्हाट इज इफेक्ट ऑन एनपीवी. देन what will happen to NPV if the project's life is less than expected. Okay, मैनेजर ने सोचा कि लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 10 होना चाहिए बट 5 years में हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया. Okay, so what will happen to NPV if the project life is less than the expected. Then what will happen to NPV if the discount rate is more than expected. Okay, so this sensitivity analysis give answer of this question. यानी एनपीवी में क्या इफेक्ट होगा जब कैश इनफ्लो में कुछ चेंज आएगा, एनपीवी में क्या इफेक्ट होगा व्हेन द कैश आउटफ्लो में चेंज आएगा, एनपीवी में क्या इफेक्ट आएगा व्हेन प्रोजेक्ट लाइफ में चेंज आएगा, एंड व्हेन एनपीवी में क्या इफेक्ट आएगा व्हेन द डिस्काउंट रेट चेंज होगा. ओके, सॉरी. हेंस whenever there is any type of uncertainty, then the sensitivity analysis play a crucial role. Okay, yani under the uncertain situation the sensitivity analysis play an important role. Clear? सो मेन क्या याद रखना है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस एक टेक्निक है
of analyzing impact of change on the project's NPV because of changes on various variable. This variable may be cash inflow, cash outflow, then project life, then discount rate and so on. Okay, so whenever decision maker performing the sensitivity analysis, the manager compute the project's NPV under major 3 forecasts: when the behavior is optimistic, when the behavior is pessimistic, and then when the behavior is expected. That is what most likely. Okay, so sensitivity analysis answer the certain question. What will happen to NPV if the cash inflow is less than expected? What will happen in NPV if the cash outflow is more than the expected? What will happen in NPV if the discount rate is more than this expected, and so on. Okay, so whenever there is any type of uncertainty then the sensitivity analysis play a important role. Okay, now steps involved in sensitivity analysis. Now यहाँ पे steps खाली पढ़ने के लिए theory में थोड़ा sums में थोड़ा अलग सा जाता है. First is what? Identification of all those variable having an influence on the project's NPV. यानी कितने factors, कितने variables नेट प्रेजेंट वैल्यू को अफेक्ट करेंगे वो पहले आइडेंटिफाई करना है. बट आपको सम्स में दे ही देते हैं कि एनपीवी को कैलकुलेट करो बाय टेकन इनटू कंसीडरिंग दिस वेरिएबल करके. सो हम लोग को कौन सा वेरिएबल आइडेंटिफाई करना नहीं है, बट थियरी है. तो थियरी में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, आइडेंटिफाइंग ऑल दोस वेरिएबल दैट हैव इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एनपीवी. Okay, so this variable may be the inflow, may be the outflow, may be the discount rate, or it may be the project life. Second, definition of underlying quantitative relationship among this variable. Okay, यानी जो भी variables identify किया, inflow, outflow, project life, okay, उसके बीच में relationship define करना है. And third, analyzing impact of change in each of the variable on the NPV. जैसे वेरिएबल में चेंज आएगा इनफ्लो, आउटफ्लो, प्रोजेक्ट लाइफ, कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें सब चेंज आएगा. सो व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन द एनपीवी? ये सेंसिटिविटी एनालिसिस मेनली स्टडी करता है. नाउ मेरिट्स ऑफ दिस मेथड. सो फर्स्ट मेरिट, it assess the risk in capital budgeting decision. Okay, now it assess the risk in capital budgeting decision. क्यों? Because with the help of sensitivity analysis we ultimately calculate the net present value. So it is a technique of capital budgeting. Okay na? So it assess the risk in capital budgeting decision. Second, it shows how different variable are sensitive to NPV. And it helps in identifying the critical variables. After knowing the critical variables, the decision maker can explore the possibility of how the variability of this critical variable may be controlled. It means ये क्या कैपिटल बजटिंग टेक्निक सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या स्टडी करता है कि हाउ द डिफरेंट वेरिएबल आर सेंसिटिव टू द एनपीवी. यानी सेल्स को चेंज करेंगे, व्हाट इज इफेक्ट ऑन एनपीवी. वेरिएबल कॉस्ट को इफेक्ट करेंगे, व्हाट इज इफेक्ट ऑन एनपीवी. इन्वेस्टमेंट को चेंज करेंगे, व्हाट इज इफेक्ट ऑन एनपीवी. डिस्काउंट को चेंज करेंगे, व्हाट इज इफेक्ट ऑन एनपीवी. एंड इट अल्टीमेटली हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल वेरिएबल. यानी सपोज सेल्स को चेंज किया तो किसके ऊपर ज्यादा, एनपीवी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट आया या कम आया. इन्वेस्टमेंट को चेंज किया, व्हाट इज इफेक्ट ऑन एनपीवी. सो ये क्रिटिकल वेरिएबल अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल वेरिएबल. ओके, यानी कौन सा वेरिएबल ज्यादा एनपीवी को अफेक्ट करेगा, ये मेथड से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा. ओके, नाउ आफ्टर नोइंग द क्रिटिकल वेरिएबल, जो भी डिसीजन मेकर है they can explore the possibility of how this variability of this critical variables may be controlled. ओके, सपोज इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत नेगेटिव में चला गया और बहुत लो चला गया. ओके, सो मैनेजर जो भी डिसीजन मेकर है उसको पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट इट इज व्हाट मोर क्रिटिकल वेरिएबल.
ओके, सो जो भी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है, दे कैन टेक इनिशिएट एक्शन और सर्टन एक्शन in order to control that particular investment. Clear? Another example, वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आ रहा है ना, सो बिकॉज ऑफ दैट एनपीवी बहुत लो हो गया. ओके, तो जो भी डिसीजन मेकर उसको पता चल गया वेरिएबल कॉस्ट दैट इज व्हाट क्रिटिकल वेरिएबल दैट अल्टीमेटली इंपैक्ट ऑन द एनपीवी. सो जो भी मैनेजमेंट है, दे कैन इनिशिएट सर्टन एक्शंस हाउ टू कंट्रोल द वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो ये क्या दिखाता है कि जो भी डिफरेंट वेरिएबल है वो कितना सेंसिटिव है टुवर्ड्स द एनपीवी एंड अल्टीमेटली आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल वेरिएबल. जैसे क्रिटिकल वेरिएबल पता चल जाएगा, मैनेजर्स क्या करेगा, वो वेरिएबल्स को कंट्रोल करेगा. डीमेरिट्स, इट कंसिडर ओनली वन वेरिएबल एट टाइम एंड अदर वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट. It means when manager performing the sensitivity analysis, at that time manager consider or manager take into account only one variable while assume another variable remaining constant. So example, जब भी managers ने sensitivity analysis किया on sales, ओके, तो उसने खाली सेल्स को चेंज किया एंड देखा कि एनपीवी में क्या अफेक्ट आया. तो वो टाइम उसने इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं किया, वो टाइम उसने प्रोजेक्ट लाइफ को चेंज नहीं किया, खाली सेल्स को चेंज किया, whereas assume किया अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट एंड उसने इफेक्ट जाना व्हाट इज इफेक्ट ऑन एनपीवी. So this method consider only one variable at a time whereas other variable are kept constant. Second, it does not consider the probabilities associated with the occurrence of different value of the variable. It means under this method probability असाइन टू द ईच कैश फ्लोस ये यहां पे मेंशन नहीं होता है. सो दिस मेथड डज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन द प्रोबेबिलिटीज असाइन टू द ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. एंड थर्ड, इट इज नॉट अ रिस्क रिड्यूसिंग टेक्निक. दिस इज अ मेथड ऑफ रिस्क मेजरमेंट बट इट इज नॉट द रिस्क रिडक्शन इन द टेक्निक. ओके, तो ये थियरी कंप्लीट हुआ. नाउ सम्स में ये फॉर्मेट याद रखना है. यू ऑलरेडी लर्न इन द फोर्थ चैप्टर इन एसवाई, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर इन एसवाई, दैट इज इन केस ऑफ कैपिटल बजटिंग चैप्टर. ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट आपने पढ़ ही लिया, यहाँ पे खाली थोड़ा ब्रीफ समझ लो. सो दिस इज अ फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस. तो ये फॉर्मेट डिक्टो हमको याद रखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, सेल्स. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स. और इवन उसका एक स्टेप्स और मिलता है, दैट इज अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स. बट यहां पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं तो हम लोग ने इंटरेस्ट में यहां पे फॉर्मेट में इंक्लूड नहीं किया. सो डायरेक्टली अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, दैट इज व्हाट ईबीडीटी. ओके, उसमें से पहले क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन. तो क्या मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज ईबीटी. ओके, उसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज ईएटी. अगेन प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, सो व्हाट वी कैन गेट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ओके, तो ये मेन हमारा आंसर आ गया कि दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. प्लस वर्किंग कैपिटल, WC यानी वर्किंग कैपिटल. इफ वर्किंग कैपिटल इज गिवन सो इट इज एडेड, बट दिस वर्किंग कैपिटल इट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. तो मैंने यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे डाला है, जितना भी ईयर का मैच्योरिटी होगा ना वहां पे वर्किंग कैपिटल होता है. प्लस सेल्वेज वैल्यू, इफ एनी मशीनरी सोल्ड तो उसका वैल्यू आएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल्वेज वैल्यू. ना ये भी कब मिलेगा, जब आप 5 years के बाद मशीन बेच दोगे तब. इसीलिए वर्किंग कैपिटल एंड सेल्वेज वैल्यू लास्ट ईयर के कैश फ्लो में ऐड होता है. सो हम लोग को कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाता है. सो फर्स्ट ईयर का तो वही रहेगा, सेकंड ईयर का भी वही, थर्ड ईयर का भी वही, फोर्थ ईयर का भी वही, बट फिफ्थ ईयर में वर्किंग कैपिटल एंड सेल्वेज वैल्यू ऐड होके ये अलग हो जाएगा. सो ये हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया.
उसको मल्टीप्लाई करना विद द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ओके, 10%, 12%, 15%, 20%, वॉट एवर परसेंटेज इट इज गिवन इन सम। सो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल यूज करना है, वैल्यू आएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो। ओके, सो टोटल करना पड़ेगा, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो, तो लास्ट में आएगा, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट लास्ट में आएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अभी आप नेट प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए हम लोग ने आगे जितना सम्स किया सेम ही है। देखो यहां तक हम लोग ने सब किया था, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डिटरमाइन करना था, तो सेल्स ये सब किया था ना। जब नेट प्रेजेंट वैल्यू किया, ये एक ही टेबल में सब कैलकुलेट दिखा दिया, बट नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया तो हम लोग ने क्या किया था, यहां से कैश फ्लो लिया था, कैश फ्लो प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस सेल्वेज वैल्यू सब ऐड करके ये कैश फ्लो लिया था, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ईयर वाइज। देन आफ्टर उसको मल्टीप्लाई किया था विद द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, विद द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके, ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो, उसको टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो क्या मिल जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आया समझ में? तो ये फॉर्मेट याद कर लेना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? बाय, टेक केयर।